सब कमन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में खड़े हैं और आपको बता दें दिल्ली में हिंदू पुजारियों की दुर्दशा को लेकर यहाँ पे एक चर्चा की जा रही है। आइए चलते हैं क्या कुछ उस चर्चा में निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या कुछ बातें हो रही हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। family profession. So, without wasting any more time, let's view this short film that we have for you today. Thank you. Srinivasulu to come and do the Deepa Prajwala. Sarvakareshu sarvada Shubham karoti kalyanam Arogya dharma sampada Shatru buddhi vinashaya Deepa jyotir namostute. ये सूचना की आवश्यकता है। हम दिल्ली राज्य सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करते हैं कि दिल्ली के मंदिरों के प्रत्येक पुजारी के लिए न्यूनतम 25,000 रुपए का मासिक मानदेय निश्चित किया जाए। कि दिल्ली के पुजारियों के उचित वेतन की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार की ओर से सार्थक कदम उठाए जाए। के पास दो चीजें थी, राज्य द्वारा दिया गया संरक्षण और समाज द्वारा दिया गया सम्मान। आज दोनों नहीं। बिना समय गवाए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रेरणा स्तंभ सीबीआई के भूतपूर्व पंडित राम गोपाल शुक्ल जी, श्री आशीष धर जी, दिल्ली स्टडी ग्रुप के संस्थापक एवं जनप्रिय नेता श्री विजय जोली जी, स्वामी विद्यानंद जी, भूतपूर्व आईएएस अधिकारी श्री दासरी श्रीनिवासन जी, सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री नागेश्वर राव जी को, जो हमारे संस्थापक भी हैं इक्वल राइट फॉर हिंदूज के, आपके सुविचार जानने को। इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, संक्षेप में समय अभाव के कारण इसको समझा दीजिए। टेक्निकल क्वेश्चन है। ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन करना है। Hindus crying for equal rights in India. You will be surprised to know
that the situation of Hindus in India is no better than that is obtaining in Pakistan and Bangladesh and Afghanistan. On the other hand, the Hindus in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, at least they have one right which the government has not taken over, that is to run their own temples. So it's not an exaggeration, but then it is not evident in India, because in India Hindus are numerically in majority. It's a numerical majority only. It's an apparent majority but not a real majority. Next. For a community or a civilization to survive, it requires at least 4 fundamental freedoms or rights. Those are political, religious, cultural and educational. As regards the political freedom and rights, in India everyone has, including Hindus, there is no problem with regard to the political rights. But in respect of the rest, whether our constitution guarantees all those rights to Hindus also, that's a question that we are going to inquire into. Next. The constitution denies equal religious freedom to Hindus. Next. This is Article 25. Apparently when you see this, there is no problem. Of course, there are many more issues, but then it requires a lot of time. Because of paucity of time, I will not go into it. I will only take one aspect of religious freedom. This is Article 25. Apparently it gives equal rights to everyone. Next, please. This is Article 26. It talks about management of the places of worship. Here also there is no problem. But what is written in the Constitution and what obtains in reality is different. Next, please. What is the reality? Now, every state in this country have made laws taking over temples. It is a misnomer, it is incorrect to say that British started this. ये तमिलनाडु से उस समय जो मद्रास प्रेसिडेंसी था वहां से प्रारंभ हुआ था। जस्टिस पार्टी जो डीएमके का जो पूर्व जो था, जस्टिस पार्टी ने वो 1926 में the Madras Hindu Religious and Development Acts को बनाया। वो precursor था for all other laws in the country. So जो हमने जो because of our intellectual laziness हमने सब ब्रिटिश का ऊपर डाल देते हैं, नहीं तो सब नेहरू का ऊपर डाल देते हैं। ये दो लोग हैं, they are the favorite whipping boys of all Hindus. So it is not the British who have done it, it is the Justice Party of 1927. Subbarayan Gounder was the Chief Minister of Madras State at that time. They took over, previous. In the throughout India, more than 2 lakh temples have been taken over. कौन सा मंदिर देश में हमारा एस्टिमेट के अनुसार अराउंड 9 लाख टेम्पल है, मंदिर है, उसमें से 2 लाख राज्य सरकारों ने ले लिया। ये 2 लाख क्यों लिया है? जिस मंदिर का कुछ संपत्ति हो, कुछ धन हो, कुछ भूमि हो या कुछ इनकम हो, उसी सब मंदिर को सरकार ने ले लिया है। और जिस मंदिर का कुछ नहीं है वो सब छोड़ दिया है। एंड मोर देन 20 लाख एकर्स ऑफ टेम्पल लैंड्स, खाली केवल पूरी जगन्नाथ मंदिर का 65,000 एकड़ है जमीन। और आंध्र प्रदेश में 4 लाख एकर्स है, तमिलनाडु में 4.5 लाख एकर्स है, तेलंगाना में 1.5 लाख एकर्स है और कर्नाटक में अराउंड 3 लाख एकर्स है। तो खाली साउथ में और उड़ीसा को मिलाने से भी आसपास में 13-14 लाख एकड़ मंदिर का जमीन है। और उसके साथ में जो तिरुपति मंदिर में एनुअली अराउंड 2000 करोड़ उसका इनकम है और वहां ही धर्म परिवर्तन होता है। पूरी मंदिर तिरुपति मंदिर आसपास में ही होता है। इस धन का क्या मूल्य है, क्या उपयोग है इसका धन का? बिकॉज ये सरकार मैनेज करते हैं। आप जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल देखिए जो त्रिवेंद्रम में, उसका जो सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिचेस्ट टेम्पल बोलते हैं बिकॉज उतना उसके पास इतना गोल्ड वगैरह है, परंतु वो पूरा एरिया अभी क्रिश्चियन बन गया और एटलीस्ट इट इज क्रिश्चियनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वेल्थ व्हेन इट इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट धर्म? और उसके बाद में टेम्पल्स हैव बिकम गवर्नमेंट ऑफिसेस
और वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, ऑफिसर अपने चलाते हैं, वो सरकार वो ऑफिस हो गया, वहाँ रिजर्वेशन भी हो गया कुछ जगह में। देन वो कमर्शियल सेंटर हो गया, आप 10,000 अभी तिरुपति में 10,000 पैसा देने से आपको तुरंत दर्शन मिलेगा, और 2,000 देने से 2-3 घंटा में मिलता है, 1,000 देने से। ये पूरा व्यापार संस्था है, मतलब सिनेमा देखने के लिए जो पैसा जो आप जो टिकट बना के ले रहे हैं, ये सर जिजिया टैक्स वर्स्ट है, उससे भी वर्स्ट है। औरंगजेब ने इतना जैसे टैक्स तो कभी नहीं लगाया, तो जिजिया तो लगाया था औरंगजेब ने, पर जिस प्रकार में जो हमारा जो मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट कंट्री में जो हिंदू मंदिरों का ऊपर, हिंदुओं का ऊपर जो जिजिया टैक्स लगा है, हिंदुओं को पता नहीं है, बट वो देता है जो मंदिर को दर्शन करके लाते हैं। मैंने अपने भगवान को हम दर्शन करने के लिए दूसरा को पैसा देना पड़ता है, ये क्या न्याय है? ये है देन हिंदुइज्म एंड इंस्टीट्यूशंस नो, वो पैसा जब हम बोल रहे हैं, तो when the money is not coming to for protection and preservation of religion, then naturally religion will die, because dhanam moolam idam jagat. Without money, without wealth, nothing can move, including dharma. Now, when Hinduism is deprived of its resources, income and wealth, you can see all those green except the one, these are all applicable. Everything is under control, and here whatever is the red है, do practitioners always say in the management of temples, no, we don't have. So this is the so-called equality given to Hindus. This is only one aspect of religious freedom. There are many others. I don't want to discuss it now for paucity of time. Some other time I will discuss. Next. Then sectarian funding. It is in common man's parlance, it is called minority appeasement. Next. Article 27 बोलते हैं that no tax shall be imposed for the promotion of any one particular religion. So far so good. बहुत अच्छा है. परंतु जो common tax जो लेते हैं उसी से पैसा देते हैं. जब when we argue, we are not imposing any special tax, but then if you are apportioning from a normal tax revenue, then it amounts to the same thing. The spirit of the article and the letter of the article are not coinciding here, what the government is doing. Next. ये देख लीजिए, पिछले जो 8.5 साल से या 9 साल से 37,669 करोड़ ये धन 2014 से अभी तक केवल अल्पसंख्यक वो उसका कल्याण के लिए, संक्षेप के लिए दिया है। मगर उसका जो पॉपुलेशन देख लीजिए 79 पॉइंट, ये सेंसस का आधार पर है, वो आपने देखिए 79.8% जो हिंदू है उसके लिए एक पैसा भी नहीं है, ये खाली केंद्र सरकार का है। अब दूसरा देखिए जो राज्य सरकारों में इससे अधिक अगर सब आपको इकट्ठा करें तो okay. Are you able to see this? So if you add up the funds given by all the state governments for the minority welfare, this will be much more than it will be. Everything will be around 1 lakh crore in the last 8 years. Whereas for Hindu को क्या मिला? कुछ नहीं है, zero. वो जो हिंदी में क्या बोलते हैं, ठेकाना क्या बोलते हैं? हाँ बस, that is it. Next please. Now these are the 5 crore scholarship. Now here this is a point we need to discuss. Now let's say example that this is a classroom. I am the teacher. I come and announce that minority कौन-कौन है, हाथ उठाओ. सरकार आपको दिया है, इसको साइकिल दिया है, इसको टेक्स्ट बुक दिया है, इसको ये दिया. बगल में जो हिंदू बच्चे लोग भी बैठे हैं और वो पूछते हैं सर हमारे लिए नहीं आप तो अल्पसंख्यक नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा. देन अगर वो बच्चा उस दिन या नेक्स्ट डे अगर वो धर्म परिवर्तन करके अल्पसंख्यक बने, तुरंत वो इसको ये स्कॉलरशिप मिलेगा उसको. इसका मतलब क्या है? That means government is promoting conversion of Hindus. जैसा जो चर्च लोग, जैसा बाकी लोग, जैसा जो प्रलोभन दिखा के जो कर रहा है वो ये कर रहा है. So this is the danger to it. आप सब अल्पसंख्यक लोग को हेल्प कीजिए, पर समान सबको कर दीजिए. जो
whosoever is economically poor, वो सब लोग हेल्प कीजिए. Why bring religion in this? Next. No, अम्बेडकर जी ने ये बोला है. हम बोलते हैं अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाया है, बट अम्बेडकर जी का ये कहना ये आप पढ़िए. और अभी जो कांग्रेस का जगह में आप सब और पॉलिटिकल पार्टीज का अंदर पढ़िए. The Congress has failed to realize that policy of concession has increased aggressiveness and Muslim interpret these as concession as a sign of defeatism and partiality. So this is the problem. I request all of you to read this book by Ambedkar. Next. What are the consequences? Minority is anything of secularism. When the state has no religion, where is the question of minority and the majority? When the state religion is one particular one, Hinduism, the rest are minority. So when Indian government, Indian constitution itself is secular, it has no religion, the question of any minority is anathema, is outrageous. Then Article 25(2) बोलते हैं explanation, Hindu means and includes Buddha, Sikh and Jain. Whereas सरकार ने ये तीनों को माइनॉरिटी बना दिया. ये असंवैधानिक है. जब संविधान बोलते हैं जो ये तीनों हिंदू का भाग है और आप उसको तो ये कर दिया, अलग कर दिया. नेक्स्ट, denial of cultural and educational rights. Next please. That is fragmenting Hindu society. This is about Article 28, which says that no religious instruction shall be provided in any education institution receiving state grant or established by. इसका मतलब क्या है? That means nothing, and they have classified everything about Hindu is religious. ऋग्वेद से लेके अब नीति शास्त्र तक सब religious declare कर दिया है. Not officially but unofficially. Next, this is effects of Article 12. We have a knowledge-based civilization. विश्व में सबसे पुरातन ग्रंथ है ऋग्वेद. सबसे लंबा और longest poem ever written, book ever written, महाभारत. But we are ashamed of teaching those things to our children. Whereas आप वेस्ट जाइए, उसका जो जितना जो वाङ्मय है, पुरातन वाङ्मय है, वो पूरा पढ़ाते हैं. But because of Article 28, we are denying our education to our children and they are being uprooted from culture. Next. Article 28. Protection of interests of minorities. As if a majority doesn't require protection. Next. Article 30. Only minorities have right to establish educational institutions of their choice. Why can't majority have the same choice? Does it in any way affect minorities? No. But it doesn't give. Next. What is the combined effect of Article 28 and 30? They deny you cultural rights, they deny you educational rights. And without education, cultural rights, civilization cannot survive. हमने पता है. And interestingly, 1996 में, 95 में, जो मेजॉरिटी बोलते हैं ये लोगों को तो एजुकेशनल राइट नहीं है. वो अपने स्वयं एक पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया है कि हिंदुओं को भी यही से ये अधिकार दिया जाए. माने एक मुस्लिम का जितना जो दया हिंदुओं का ऊपर है, जो हिंदुत्व और हिंदुओं का ऊपर हमारा जो धर्म का नहीं है, वो बोलते हैं जो माइनॉरिटी वर्ड को हटा के सभी ऑल पर्सन्स एवरीवन कैन एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट. सो हमारा डिमांड ये है आर्टिकल 25 से 30 ले उसको अमेंडमेंट करना है. हिंदुओं को आप समान अधिकार दीजिए. हम नहीं चाहते हैं अधिक. हिंदुओं को नीचे बिठाया है, अल्पसंख्यक को सोफा में बिठाया है. हम चाहते हैं हमको भी एक सोफा दो, हमको भी वही सोफा में बिठाओ. हम नहीं चाहते अल्पसंख्यक को नीचे लाओ, हमको उठाओ. इतना ही है. This is it. Thank you. And I take another 2-3 minutes. Sorry. I already got 2 reminders. I think you can switch on the lights, full lights. Now, I ask a question. There are high-class colonies in every Banjara side. मुंबई में BKC है, मलबार हिल्स है, ऐसा सब जगह में है.
चेन्नई में बोट क्लब एरिया है, कितना पुजारी और पुरोहित वर्ग से वहां उसका घर है, वहां रहते हैं। हम तो नहीं दे पाए because we are treating them. Whereas go back 200 years, सबसे मोस्ट प्राइम लोकेशंस में जो पुजारी पुरोहित वर्ग रहते थे, so that is the status from कहां से ऊपर से लाके हम पूरा नीचे गिराया। मैंने हिमालय जो शिखराग्र से लाके हम जो चैलेंजर डीप है ना, जो समुद्र में जो सभी गंभीर जगह है वहां डाल दिया, पैसिफिक ओशियन में वो जो वहां डाल दिया। दिस इज द सिचुएशन। ये क्यों हुआ? एक्चुअली मैंने एक स्टोरी सुना था बहुत पहले। क्रिश्चियन जो मिशनरी आए थे ब्रिटिश लोग के साथ, वो कुछ हिंदुओं के पास गए थे जो बंगाल एरिया में, विशेषकर बंगाल एरिया में गए थे। उसको बोला आ जाओ हमारा धर्म के लिए। वो बोला अब जो बोला है ठीक है, परंतु मैं मेरा पंडित जी से पूछता हूँ मैं ये धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ। ऐसा बहुत जगह में हुआ। Then the missionaries realized that in the project of Christianizing India, the biggest obstacle will be the pandits and purohits. Until and unless you delegitimize रहते हैं, दक्षिण में जो काला चमड़ा वाला रहते हैं, ये दक्षिण में ये पूरा उधर से आया, आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो सृष्टि को करके ये लाया है। This is the biggest atrocity literature that has ever been created. Along with that, so much of thing has been created, and Bengal education system and Hindu mind has been completely poisoned, and they are turned against Purohits. In fact, most Brahmins also turned against Purohits. That is the saddest part, because what goes into mind, writing the script and ensuring that the movie comes out the way it has come out. Hope you have liked it, and if this message is taken forward, at least in Delhi area, the same amount, अगर 25,000 हो, अगर 25,000 नहीं है तो 18,000 जो मुस्लिम इमाम को जो दे रहा है, अगर दिल्ली सरकार ने या केंद्र सरकार ने अगर उतना ही धन मंथली ऑनरेरियम अगर हमारा पुजारी को दिए, तो कम से कम उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। ये हमारा आशा है। हमें आपका परिचय पता है और हम हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दे दीजिए सर पुनः। मेरा नाम नागेश्वर राव है। मैं एक IPS ऑफिसर रिटायर हूँ, तो डायरेक्टर CBI रिटायर हुआ था। अभी रिटायरमेंट के बाद हैदराबाद में रहता हूँ। मैं हिंदू धर्म के संबंध में, विशेषकर हिंदुओं का जो अन्याय जो हो रहा है, हिंदुओं का जो संवैधानिक अधिकार जो समान अधिकार नहीं है, उसका ऊपर हम काम करते हैं। हमारा जो मूवमेंट का नाम है जो इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज, उसको हिंदी में बोलते हैं हिंदुओं का समान अधिकार, वो ये है हमारा है। तो संविधान में जो अधिकरण जो 25 से 30 ये हिंदुओं को पूरा विवश करते हैं। जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग को जो अधिकार देते हैं वही समान अधिकार हिंदुओं को नहीं देते हैं। इसी वजह से हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में बहुत समस्या उत्पन्न हो रहा है, और हम सरकार को मांगते हैं इस आर्टिकल 25 से 30 है, इसको संशोधन करके हिंदुओं को समान अधिकार दें। हम ये नहीं चाहते जो अल्पसंख्यक वर्ग से हमको अधिक अधिकार चाहिए। हम मांगते हैं अल्पसंख्यक वर्ग को जो अधिकार है संविधान में, उसी अधिकार हमको भी दिया जाए। मेरा उदाहरण ये बोलते हैं दैट हमको जो संविधान हमको जो नीचे बिठाया है और अल्पसंख्यक वर्गों को सोफ़ा में बिठाया है, हम मांगते हैं हमको भी एक सोफ़ा दीजिए, उसके साथ में हम उसी सोफ़ा में बैठे। बस यही है। और सर जैसे कि यहाँ पे और भी बुद्धिजीवी आए थे, उनका ये मानना था कि सिर्फ एक सेमिनार करके या फिर विचार विमर्श करके ही नहीं, एक ग्राउंड पे जाकर, जैसे कि रामलीला मैदान में जाकर एक आंदोलन करके हमें हिंदू पुजारियों के लिए कुछ आगे उनके अस्तित्व को बचाने के लिए एक आंदोलन करना होगा। सर ये क्या धरातल पर सर संभव है? सब स्तर में काम होना चाहिए। पहले अवेयरनेस होना चाहिए। समस्या क्या है अगर आपको अवगत नहीं है,
आप आंदोलन क्या करेंगे? बिल्कुल पहले तो समस्या है क्या नहीं वो तो आपको अवगत होना चाहिए। सो हमारा जो अभी ये प्रथम जो स्टेप लिया है दैट समस्या क्या है सबको अवगत करना है। जो हमारा पुजारियों का, हिंदू पुजारियों का, पुरोहितों का क्या समस्या है उसको किया है। और जो जब दिल्ली राज्य में जो मुस्लिम इमाम और बाकी जो अन्य धर्म का लोगों को जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जो उसको जो वेतन या ऑनरेरियम जो बोलते हैं वो दे रहा है, बट वही वो हिंदू पुजारियों को, पुरोहित को क्यों नहीं दे रहा है? बिल्कुल। बिकॉज ये तो लौकिक, ये तो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सभी धर्म लोगों को समान देखना है। और जब ये हिंदू जो मुस्लिम इमाम को जो कुछ आर्थिक समस्या है वो समस्या जो हिंदू पुजारियों की भी है, सबको देना चाहिए। हमारा डिमांड ये है, हमारा मांग ये है, सभी जितना जो 50,000 फैमिलीज जो हिंदू पुजारी पुरोहित का है जो दिल्ली में, उसको प्रत्येक फैमिली को प्रत्येक मास 25,000 रुपया उसको जो वेतन या ऑनरेरियम दे, सो दैट वो थोड़ा उसका जो आर्थिक परिस्थिति थोड़ा ठीक हो जाए। सर ये सिर्फ दिल्ली के लिए ही या फिर अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से बिगुल बजना चाहिए? ये सब राज्य में समस्या जो पूरा देश भर है, बिकॉज संविधान तो देश भर ही है, परंतु हमने लिया है जो यहाँ का, बिकॉज दिल्ली में कुछ एडवांटेज है, बिकॉज छोटा जगह है, सो दैट हम इसका जो शुरुआत यहीं से हो, यहाँ तो प्रारंभ यहाँ से किया है, फिर हम करेंगे जो बाकी जो अन्य राज्य में सभी करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप, पहले यहाँ से होना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर ठीक नहीं आता। सर नमस्कार। नमस्कार सर अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि सर आपने एक आह्वान किया है इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज़, तो सर क्या कुछ कहेंगे हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे देशवासियों को कि पुजारियों का कैसे सम्मान किया जाए और उनको उनकी बढ़ोतरी के लिए आगे क्या काम किए जाएँ? ये एक आश्चर्य विषय होगा। 99% प्रतिशत जो हिंदुओं को भी आश्चर्य होगा दैट ये भारत में हिंदू समाज को, हिंदुओं को समान अधिकार नहीं है। किसके साथ समान अधिकार नहीं है? जो अल्पसंख्यक वर्ग को जो समाज जो अधिकार है वो अधिकार जो हिंदुओं का नहीं है। हम ये कहना जो आश्चर्य नहीं है दैट पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो हिंदू है उसको उसका अधिकार जो भारत में जो हिंदू है उसका अधिक है। कैसा? कम से कम वो अपने मंदिर को चला सकते हैं। भारत में तो हिंदुओं तो अपना मंदिर भी नहीं चला सकते बिकॉज वो तुरंत सरकार ले जाते हैं। बट ये इमीडिएटली दिखता नहीं है। क्यों? बिकॉज भारत में हिंदुओं का जो संख्या अधिक है, खाली संख्या अधिक होने से ये समस्या नहीं दिख रहा है। जब भारत में जो जिस भाग में, जिस प्रांत में जो हिंदुओं का जो नंबर कम हो रहा है उस जगह में हिंदुओं का समस्या उत्पन्न हो रहा है। जो कश्मीर में जो मेन समस्या कहाँ से आया है? जी 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 बिल्कुल, वो तो बिकॉज हिंदू कम हो गया है। 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हिंदू था, नहीं इंडिया था। अभी जो इंडिया से भाग दूसरा क्यों हो गया? बिकॉज जब तक जिस प्रांत में हिंदुइज्म, हिंदू धर्म वो अधिक प्रभावशाली है, अधिक लोग हिंदू रहते हैं, वो खाली भारत रहेंगे। जब वो वहाँ जिस जगह में जो हिंदू कम हो जाता है वो भारत से विच्छिन्न होता है। जो इसका अनुभव, इसका जो वास्तविक में है, हम जो अफगानिस्तान अब क्यों भारत में नहीं है, पाकिस्तान भारत में क्यों नहीं है, बांग्लादेश क्यों नहीं है? बिकॉज वहाँ हिंदू धर्म खत्म हो गया है। सो इसके लिए हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए हिंदू पुजारी, पुरोहित वर्ग को हम समान अधिकार देना है, उसको जो ठीक देखभाल करना चाहिए। वैसे ही संविधान में जो संशोधन करके पर्टिकुलरली आर्टिकल्स 25 से 30 को संविधान जो उसको संशोधन करके हिंदुओं को समान अधिकार देने का आवश्यकता है, नहीं तो ये हिंदू धर्म नाश हो जाएगा। जब हिंदू धर्म नाश हो जाता है भारत भी नाश हो जाता है। पुनः सर अपने परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं रिटायर्ड IPS ऑफिसर हूँ। मैं CBI में डायरेक्टर था, अभी रिटायरमेंट के बाद हैदराबाद में रहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। पहली बार इस प्रकार का आयोजन हिंदू पुरोहितों के ऊपर उनकी जो दुर्दशा है, जो उनकी दयनीय स्थिति है, आज नहीं जो कई सौ साल से चल रही है, उस पर ध्यान डालने के लिए आपका बहुत बहुत नमन।
और बृहद रूप से हिंदू समाज के साथ जो संवैधानिक अन्याय हुआ है, संवैधानिक अन्याय जो हिंदू समाज के साथ हुआ है, उसकी तरफ आपका ये प्रयास बहुत प्रशंसनीय है। एंड आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड एंड माई डीप रिस्पेक्ट टू यू। ये बताने वाली बात नहीं है कि हिंदू धर्म का आधार स्तंभ ब्राह्मण है, पंडित है। ये अगर कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, उसमें वो एक प्रश्न पूछते हैं कि इतनी बहादुर कौम पर्शियंस की, इरानियंस की, इतनी बहादुर कौम, और अरब इस्लामिक आर्मीज ने 30 साल में उनका 3,500 मील की विड्थ है ईरान की। 30 साल में अरब इस्लामिक आर्मीज ने ईरानियों को हरा के उनका धर्म भी परिवर्तन किया, पर ईरान जीतने के बाद भारत के बॉर्डर पे आए, वहां से दिल्ली तक आना 1260 मील, 400 साल लगते, 400 साल। और अभी भी जो उनका एजेंडा था, जो उन्होंने इजिप्ट में किया, सीरिया में किया, लीबिया में किया, ट्यूनीशिया में किया, ईरान में किया, इराक में किया, धर्म परिवर्तन, वो अभी भी सफल नहीं हुए हैं। तो कार्ल मार्क्स पूछता है कि ये कैसे हुआ, इतने बहादुर कौम 30 साल में, और हिंदुओं ने एक इंच किस तरह पलटी। और वो जवाब देता है कि ईरान की जो लीडरशिप थी, रिलीजियस लीडरशिप, उनकी जो लीडरशिप थी, मॉरली करप्ट थी, सोशली रोल मॉडल नहीं थी, और इंटेलेक्चुअली डिफंक्ट थी। पर भारत में जो पंडित परंपरा थी, हर गांव में पंडित था, वो टीचर भी था, वैद्य भी था, और सलाह देने वाला साइकियाट्रिस्ट भी था। वो पंडित जो ब्राह्मण थे, वो मॉरल एग्जाम्पल्स, सोशल रोल मॉडल्स एंड इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे सोसाइटी के। This is Karl Marx. This is not an RSS worker talking. Karl Marx, he said they were the leaders, they organized the resistance. They organized the resistance, and that is why wherever the Muslim armies, they captured even a small town, they did 4 things one after the other. They destroyed the temple, built the mosque, because the Brahmins used to live around the temple. They slaughtered the Brahmins wholesale, because they knew that they are the ones who organized the resistance. They killed all male children 5 years and above, and they carried away, number 4, all the young girls. This they did everywhere. गाना मुसलमान पीरियड में बैंड था। आप संस्कृत पढ़ा नहीं सकते थे, आप संस्कृत का ग्रंथ कहीं रख नहीं सकते। और उस समय में जब यूनिवर्सिटियां, नालंदा की लाइब्रेरी 6 महीने चलती रही, यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, तो ब्राह्मणों ने एक्सट्रीम पेनुरी में, पॉवर्टी में, ब्राह्मणों ने दरिद्रता में एक किसी धारा के ग्रंथों को यहाँ संजो के रखा दिमाग में। मुझे भगवान ने कहा तुझे जन्म लेना पड़ेगा ताकि सर्व सकल हिंदू धर्म गाजे। गुरु गोविंद सिंह कह रहे सर्व सकल हिंदू धर्म गाजे। और मेरा धर्म क्या है? एक क्षत्रिय का क्या धर्म है? गौ ब्राह्मण जनेऊ और तिलक की रक्षा। गौ ब्राह्मण, सिर्फ 2 शाखाएं बची हैं 21 में 2, और उनमें से एक जो है वो राजस्थान में एक पंडित जी के घर में है। बस सिर्फ वो पंडित जी मर गए,
वो शाखा भी खत्म हो जाएगी। तो कौन अशुभांगी कौन करता है ध्यान? हम लोग करते, हम अपने आप को भूले बैठे, हम कुछ जानते, बड़ा खुश हैं, पैसा है, पैसा मिल रहा है। ये मैकॉले ने चिट्ठी लिखी अपने फादर को 36 में कि हमारे स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी हिंदू स्कूल में पढ़ता है उसके लिए अपने धर्म का सम्मान रहता ही नहीं, वो अपने धर्म को भूल जाता है। ये धर्म परिवर्तन से ज्यादा अच्छा है, आज भी हो रहा है। हमारे बच्चे स्कूलों मिशन स्कूल जाके ये तो एकदम सीख जाते हैं, ये ऐसे करके ऐसे करते हैं, अब भी हो रहा है। और इसलिए शिक्षा व्यवस्था, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसमें जहां जहां हो सके 5वीं क्लास तक आप मातृभाषा में पढ़ाइए। अंग्रेजी तो सब जगह हो सकती है, सब जगह, पर अपनी मातृभाषा जहां हो सके, जहां हो सके। और बड़ी न्याय शिक्षा नीति हुआ क्या? परिचय भी दीजिए। मैं कपिल कपूर, भगवत गीता में से परिचय दूं, हैं सिद्धा नाम कपिल मुनि। मैं JNU। सर, आज जैसे कि पुजारियों की जैसे कि दूरदर्शा को यहाँ पे विचार विमर्श किया गया, दिल्ली में खासकर जैसे कि दूरदर्शा हो रही है, सर क्या लगता है कि विचार विमर्श करके और एक मीटिंग गठित करके क्या सर उस दूरदर्शा को दूर किया जा सकता है? ऐसा है कि चर्चा होगी, चर्चा फैलेगी, जब लोगों में उसके बारे में एक जागरूकता आएगी तो धीरे धीरे एक बनता है ना, एक वातावरण बनेगा, तो लोगों को बात समझ आएगी, तो धीरे धीरे लाभ तो, इसका प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा देखिए, मैं तो कह रहा हूँ देश में यज्ञ चल रहा है, आपको अचानक देखेंगे देश बदल जाएगा। तो इसमें सर जैसे कि हमने वीडियो देखा, वीडियो में बहुत ही मार्मिक स्थिति दिखाई गई पुजारियों की, बहुत ही ऐसी इमोशनल स्टोरीज थी जिसमें उनको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो बताया, ये तो मैंने 18वीं 19वीं शताब्दी से बनाया, तब से चल रहा है। हम ये आपकी सरकार जो है वो इमामों को तो तनख्वाह देती है, पर इनको नहीं देते, पर ऐसे कोई नहीं देते तो देना चाहिए ना। पर बात किए बगैर, लोगों में फैलाने के बगैर बात बनेगी नहीं। ये ज़रूरी है ये एक्टिविटी भी, बाकी फील्ड में जाके एक्टिवली जाके बोलना मांगना वो भी ज़रूरी है, पर वो बाद में आता है। पहले यही चिंतन जो होता है ना, शुरू ज्ञान से ही होता है। और सर आह्वान भी किया गया कि सिर्फ यहाँ पे विचार विमर्श करके नहीं, वहाँ रामलीला मैदान जाकर एकत्रित होकर एक आंदोलन करना होगा। उसके लिए तो देखिए, यू नीड ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, पीपल लाइक अस, यू नो, हु आर बेसिकली टीचर्स, वी आर नॉट एबल टू डू दीज थिंग्स। सर हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय भी बता दीजिए। सर हमारे जय वो जला देते थे। आज भी आप अगर मिडिल ईस्ट में जाते हो, आप भगवत गीता की कॉपी ले जा नहीं सकते, वो आपके सामने फाड़ दी जाएगी, श्रेड कर दी जाएगी। वो यहाँ होता था। तो सारे ग्रंथ एक एक फैमिली में, एक एक डोमेन ऑफ नॉलेज, व्याकरण में, दर्शन में, ज्योतिष में, कल आज आपके पास एक भी अपना ग्रंथ नहीं, एक भी ग्रंथ नहीं। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने विचित्र, वो एक पांडुलिपि को सोने से ज्यादा कीमती समझते थे, सोना दे देते थे, कोई छीनने आता था, पर पांडुलिपि नहीं दिखाते थे, पांडुलिपि नहीं देते थे। पर उनकी इतनी दरिद्रता हो गई कि पंडिताइनों ने पांडुलिपियों की लकड़ियों से चूल्हा जलाना शुरू किया। सर आपको सुनना भी एक अनुभव है। उपस्थित सभी विद्वज्जन, प्रणाम करता हूँ सभी को। उपस्थित अर्चक, ब्राह्मण, अर्चक और विप्रवर, आप सभी को प्रणाम है। बहुत अच्छा कार्य है। राव जी ने कम से कम शुरुआत तो की है ना। हो गई है पीर, पर्वत सीप पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा निकल गई। बहुत कुछ हो गया है। ब्राह्मणों को दोष दिया जाता है, ब्राह्मणों को इग्नोर किया जाता है, ब्राह्मणों को सब कुछ थोपा जाता है ब्राह्मणों के ऊपर। लेकिन ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारे क्रियाकर्म कराने वाला वो ब्राह्मण होता है। आप जहाँ बच्चा पैदा होता है, आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मण है।
लेकिन वो गुरु परंपरा समाप्त हो गई है। आशीर्वाद देख करके वो शांत हो जाते हैं। ब्राह्मण भूखा रहता है, हमारे घर में अग्नि जलती है, ब्राह्मण सूखा रहता है, लेकिन किसी को कोई कहीं पता नहीं। हम बहुत से गूगल दादा के बहुत से अर्थ बताते हैं, तमाम सी मीटिंगें होती हैं, तमाम सी रैलियां होती है, लेकिन एक बात याद रखना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा। ये हमें राव जी ने बताया था कि पुजारियों के लिए रखा गया। दिल्ली में पुजारियों की स्थिति क्या है, उस स्थिति को केवल केजरीवाल बदलने वाला नहीं, उसके बदलने से नहीं बदलेगी। हमें भी कहीं न कहीं मैदान में उतरना। हम केवल केजरीवाल को दोष देते रहे, हम केवल मांगते रहे हमें 16,000 दे दो, 20,000 कैसे मिलेगा? इकट्ठे होकर के 1 लाख रामलीला मैदान में चले जाओ, वहां पर लाठी खाओ, गोली खाओ, मिलेंगे 15,000। लेकिन यहाँ बैठ करके केवल मीटिंग करके बोलते रहने से 15,000 का 5,000 मिलेंगे। जय श्री राम। इसलिए भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में अपना बल देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से भगवान हनुमान जी मारा पवन सने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा अवतार सनातन संस्कृति के लिए हुआ है, तुम्हारा अवतार भारतीय संस्कृति के लिए हुआ है, तुम्हारा अवतार वैदिक संस्कृति के लिए हुआ। जोड़ना शुरू करें, कम से कम ये तो करें, जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, हमारी कॉलोनियां है, उनके अध्यक्षों से मिलकर के पूरे विश्व की ब्राह्मण सभा एनजीओ बना दिया। गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है, उनको गाड़ी मिल जाती, घड़ी मिल जाती, और एक जो बनिए हैं, जो भी अतर जाति के हैं, ब्राह्मण बैठा होता है मंदिर में जाके कहते ये अध्यक्ष हैं, ये महामंत्री, पंडित जी जरा एक गिलास पानी लाना, पंडित जी जरा ये देखो सफाई करना। वो भी पंडितों को ही हर्ष करने के लिए उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि कम से कम पंडितों की इज्जत तो करना सीखें। कहाँ रहे हम, कहाँ हमारी संस्कृति, कहाँ हम बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? हम हिंदू धर्म का बखान करने वाले, हम पंडितों को पैर छूने वाले, वही जाकर के मंदिर में कहते हो पंडित इधर क्या कर रहा है, कौन सी भाषा बोलने, कैसे बंद होगा? ये जागृति करने पड़ेगी। ये कहीं न कहीं संस्कृत विद्यालय भी हम कहते हैं वेद विद्यालय खत्म हो रहे। अरे किसने खत्म किए वेद विद्यालय? क्या आपने चाहा है कि वो वैदिक विद्वान बने, उनके लिए कोई सताएगा, जाल डालेगा? हम नहीं फंसेंगे, फंसे हुए हैं, सब कुछ है, जाल लेकर उड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलते क्या जा रहे हैं, पहले आएगा जाल डालेगा। हमने मैं समाप्त कर रहा हूँ, मैं तो इसके साथ शब्द भी नहीं इसके अलावा मेरे पास। तो इस तरीके से अगर हमें कहीं न कहीं आगे चलना है, मैं सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, नागेश्वर राव जी आपका बहुत धन्यवाद करते हुए, आपने कम से कम शुरुआत की है, यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए एक संकल्प लेकर के जाए कि कम से कम जो एक तुम्हारे गली का, मोहल्ले का एक छोटा सा मंदिर है, अगर उस पुजारी के घर में चूल्हा नहीं जला है तो कम से कम 2 रोटी देकर के उसका चूल्हा जरूर जला दे। धन्यवाद। सर, आज पुजारियों की दुर्दशा को सुधारने के लिए जैसे कि दिल्ली में मुख्यतः सर एक कार्यक्रम रखा गया कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, क्या कुछ कहेंगे सर अपने परिचय के साथ हमारे दर्शकों के लिए? क्या कुछ आह्वान पुजारियों की दुर्दशा को सुधारने के? मैं आचार्य रामगोपाल शुक्ल मीडिया से हूँ, लगभग 9 चैनल मैंने चलाए, उनका CEO रहा हूँ और कई सभाएं हैं, संस्थाएं हैं। मेरा केवल एक कहना है, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए फील्ड में आकर के, ग्राउंड में आके काम करना पड़ेगा। केवल मीटिंगें करने से, जयकारा लगाने से, अगर तुम्हें केजरीवाल से छात्रवृत्ति चाहिए, आप इकट्ठे हो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख ब्राह्मण इकट्ठे हों, सब लोग इकट्ठे हो करके रामलीला मैदान चले जाएं, वहाँ जा कर के तमाम से प्रकार के प्रदर्शन करें, इकट्ठे हो, तभी तो बल दिखाई पड़ेगा ना। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हम इकट्ठे होकर के सनातन संस्कृति के लिए, वैदिक संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, पुजारी समाज की दीन दशा को दूर करने के लिए, उनको फिर वही भारत के गौरव बनाने के लिए हम सब मिल कर के, पुजारी लोग, ब्राह्मण सब इकट्ठे होकर के सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बस इतना ही। Where right from the beginning we are not teaching our children, neither in schools nor at home, about our own culture, about our own religion. I think it's time that we all started doing it. My next question would be to Shri Vijay Jolly ji.
almost every country today has a state religion. They have their own religion, they are either with Christianity or Islam. And in all these countries, the clergy is treated with respect. And the government also looks after their financial needs to a great extent. So, even though we are a Hindu majority country, why is it that any government, I'm not talking about this government, that government, from understanding this basic fact and doing something for them? Because if you don't sustain them, how will our culture sustain? मैं क्वेश्चन, लेकिन दुनिया के 87 देशों का दौरा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा जो अभी स्वामी जी ने कहा, जब तक हमारा समाज और विशेष तौर से 79.8% भारत के हिंदू भारतीयता के बारे में, भारतीय संस्कृति के द्योतकों के बारे में, हम सबके कर्म कांड कराने वालों के प्रति श्रद्धा के भाव को जागृत करने में खुद जागृत नहीं होंगे, कोई भी सरकार आपके साथ न्याय नहीं कर सकती। मुझे 42 साल हो गए एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन अभी मैंने जो चीज देखी वो मैं आपसे एक्सचेंज करना चाहता हूं। मैंने कोरोना वायरस के समय जब हम सब लोग अपने अपने घरों में थे और जो आपकी व्यथा मैंने देखी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। जितना भी हम कर सके हमने किया, लेकिन एक प्रकल्प मैंने शुरू किया। दुनिया के 151 देशों की नदियों और समुद्रों का जल अयोध्या राम मंदिर में अर्पण करने के लिए मैंने भारत में मंगवाया, उसको पैक करवाया और जिन जिन देशों से मित्रों ने, सहयोगियों ने, फॉलोअर्स ने, वेल विशर्स ने, रिलीजियस प्रीचर्स ने उस जल को भेजा, मैंने उनको कहा नागेश्वर जी प्लीज मेक अ स्मॉल वीडियो, नहीं तो लोग सोचेंगे दिल्ली के सैनिक फार्म का जल जहां विजय जौहरी रहता है वहां पर भर के कह रहा है कि मैं अयोध्या भेज रहा हूं। आई वॉज शॉक्ड। मडगास्कर का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो क्रिश्चियन है और जिन्होंने मेरे निवेदन पर मडगास्कर के समुद्र का जल अयोध्या राम मंदिर के लिए भेजा, उन्होंने भी अपने घर में एक मडगास्कर के अंदर ब्राह्मण को बुलाकर घंटी बजवाकर प्रभु की अर्चना कर कर आरती कर कर वो जल मुझे भेजा। कितना सम्मान है दुनिया के अंदर। मैं नागेश्वर जी आपकी इस बात से असहमत हूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की जो दुर्दशा है उससे बुरी दुर्दशा हमारे प्रीस्ट और प्रीचर्स और पंडितों की है। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। मुझे जन्मदिन के नाते हो, मरण दिन के नाते हो, कर्म कांड के नाते हो, किसी भी चीज के अंदर हो, ये जरूर है कि आज ये संख्या आपकी कम हो रही है। आई फील अलार्म्ड। अगर किसी पंडित के बेटी और बेटी को बोलो क्या तुम पढ़ताई करोगे, तो वो वही कहेगा जो अभी स्वामी जी ने कहा, ठीक कहा। हमें अपने समाज में जागृति लानी पड़ेगी, एकता लानी पड़ेगी, कोहेसिवनेस लानी पड़ेगी, तभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द डे, ए हो या बी हो या सी हो या मिडिल ऑफ द पाथ हो, आपको इग्नोर नहीं कर सकती। माइंड इज राइट, ये याद रखिए। मैंने बहुत दिन पहले मैं संगम बिहार में मेरा ऑफिस है, तुगलकाबाद, यहाँ पर जितने मंदिर हैं उनके पुजारियों के मुझे नंबर और ईमेल चाहिए। 2 महीने हो गए,
मैं अभी तक उस प्रोसेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन होऊंगा। लेकिन आज आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत की। स्वामी जी का तो पूरे इंडोनेशिया तक और इंडोनेशिया से लेकर कीनिया तक मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं तो कम से कम अपने बारे में जरूर कह सकता हूँ, एज स्वयं सेवक, एज फुट सोल्जर, मैं दिल्ली के अंदर जितनी भी जगहों के अंदर आपकी इस मूवी को होकर जन जागरण, जन चेतना करवा सकता हूं। डॉक्टर विजय जौहरी का आपको शब्द रहा, आपसे लूंगा नहीं, कुछ आपके बारे में प्रचारित करने के लिए अपनी जन सेवाओं को जरूर अर्पित करूंगा। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस इन वन गो। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Jagji. Before we continue, Ankit Ji, who has been instrumental in the making of the film. उसके हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हम सिर्फ एस्केप की बात करते हैं कि हाँ हम तो सब बराबर है, सब ठीक है। सेक्युलर में तो सेक्युलरिज्म भी उसका ही एक आउटकम है कि हाँ सारे धर्म सर्वधर्म सम्मान। तो मेरा एक सजेशन है जो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। फटाफट पॉइंट्स बोलती हूँ। एक तो ब्राह्मण्स की जब बात हुई तो मुझे किसान की भी याद आ रही थी कि कैसे किसान अगर है तो कोई उनकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, ऐसी स्थिति है। बॉलीवुड की हमने उसको ब्लेम नहीं किया कि हमने गवर्नमेंट्स को ब्लेम किया, ब्राउन अंग्रेज़ों को ब्लेम किया, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैंने टीवी सीरियल्स देखे हैं जहां विलेंस बैठ के राम राम जपते हैं, तो वो क्या सटल वे में इंप्रेशन पहुंचता है, मेरा दिल धड़क जाता था। लेकिन देयर इज़ होप। मैं पिछले 20 साल से टीका लगा रही हूँ और कुमकुम का मैं बिंदी नहीं लगाती बिकॉज आई फील बिंदी ब्लॉक्स मी। मैं जब अब्रॉड की विजिट करती हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं मामा लुक वेस्टर्न ड्रेस पहने हो आप, यहाँ अच्छा नहीं लगता, देखो सब ऐसे हैं। मैं प्राउडली बड़ा टीका लगाती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई हिंदू आइडेंटिटी वेदर आई एम हियर और ऑस्ट्रेलिया वेरेवर आई गो। एंड आई थिंक वी शुड ऑल हैव दैट फीलिंग। क्यों हम वेस्टर्न पहने वहाँ जाकर के, क्यों, वाई हाइड हिंदू आइडेंटिटी। तो दूसरा है कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग में श्री जी ने बहुत काम किया है इन दिस रिस्पेक्ट। अपने यहाँ उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटी है, श्री यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बहुत सारी पढ़ाई होती हैं और जैसे आप कह रहे हैं रुद्र पूजा और ये जी सजेशन क्विक, the simple solution is one line, just do a puja every month. मैं कर रही हूँ हर, जब से मुझे ये अवेकनिंग हुई है कि ब्राह्मण्स की दुर्दशा है, तो हर महीने आप एक पूजा अपने, जैसे हम पेट्रोनाइज करते हैं फैमिली डॉक्टर को, एक पुजारी क्लोज बाय को उनको आप पेट्रोनाइज कर लिए, घर में एक पूजा रखाइए, एक फिक्स्ड इनकम दीजिए। 10, 15, 20 फैमिलीज एक पूजा पर मंथ करेंगी, फिक्स्ड उनको देंगी, एंड it is good, you know, it's a win-win for both. That's Dr. Paul. So this month I was very happy to meet a lot of good people. I went to Jaipur Dialogues and met Swami ji. मेरे दो सवाल हैं, एक मैं राव साहब से और परेशान हूँ, उसके बाद BHP भी स्ट्रॉन्ग हो गया, BJP भी स्ट्रॉन्ग हो गया। Just want to ask you two simple questions. If you are very honest with Hinduism, जैसे आप लोग हैं, you know, आप crowd से को बोलते हैं, लेकिन the answers are lying with you. Till the Hindus don't unite and form a nice organization, जिसमें statisticians, you know, statistics होंगे, tacticians होंगे, Brahmins होंगे, scholars होंगे, and another thing offshoot of this is shouldn't we have something like Sanatan Aid, a kind of global fund जहाँ पे हम honestly per month कुछ दे पाएं और एक fund जमा हो जाए और जब हिंदू उसमें से आप disperse कर सकते हैं स्वामी जी को। I just want these two questions from two learned people. तो बोल सकते थे घंटों। इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, देखो अमेरिका में भी पीव फोरम का सर्वे है ना, यूएसए, द रिचेस्ट हिंदू जहां नंबर 1 वेल्थ जनरेशन में ज्यूज है वहां पर, सेकंड नंबर में रिचेस्ट माइनॉरिटी हिंदू है और मुसलमान बहुत नीचे है वेल्थ जनरेशन में। लेकिन उनका दूसरा सर्वे का क्वेश्चन था कि हाउ मच दे स्पेंड मनी ऑन देयर कम्युनिटी कॉज। इन अमेरिका की बात कर, नॉट बाहर आता है,
Jews spend 7.5% of their income on their Jewish cause. Or Hindu 0.002%. I am telling you, this is American population. They are hip hop, drinking, dancing, bhangra, dandiya, garba community. That's all. And coming to the organization, to forming organization, Hindu society is a democratic society. Everyone has right to form organization. No one is objecting you. You can go and form and make it successful. If you don't think others who are working, they are not successful, everybody has right to form organization, set up and do things. At the respected place. जी धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम जिया मंजरी है। मैं कॉलमिस्ट हूँ। पिछले कुछ वर्षों से, लगभग 4 वर्षों से सक्रियता से बहुत सारे संगठनों के साथ काम कर रही हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से एक चेंज लाने की कोशिश करी जा रही है, वंशानुगत जो पुजारी हैं उनकी जगह जो नए पुजारी लाने की बात की जा रही है, उसके विरोध में पैनल या आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ये मेरा प्रश्न है पहला। दूसरी बात कि जब हम बात करते हैं कि हम नए ट्रेंड पुजारीज को लाके रख देंगे, सो वन थिंग आई हैव टू से हियर, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस देखी जाती है, लॉयर्स की प्रैक्टिस देखी जाती है, बट एट द टाइम ऑफ लाइक नो आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ द सोसाइटी पीपल हु आर सिटिंग आउट हियर, ट्रेंड पुजारी रखेंगे क्यों? क्या ये इस प्रकार की बातें मैडम आपकी प्रश्न समझ गया। देखिए, आप गांव में चले जाइए, लाखों मंदिर ऐसे हैं जहां पुजारी अब ब्राह्मण नहीं है पूजा करने वाले। आप इधर सुनिए, लेकिन भगवान है वहाँ पर भी लोग पूजा छोड़ दिए हैं। देखो आप शहर में बैठी हुई हैं, गाँव में जाइए, गाँव में मंदिर में कोई आपकी पूजा जल चढ़ाने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहाँ रहती हैं? तमिलनाडु में। मुझे बताओ, मैं विश्व हिंदू परिषद ग्राम कोविल पुजारी दल पेरवाई संगठन चलाकर गांव में लगभग 1 से 1.5 लाख मंदिरों में वहाँ पुजारी नहीं। डॉक्टर के बेटा फन डॉक्टर नहीं बन जाएगा, उसको भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तभी प्रैक्टिस कर पाएगा। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसी परंपरा हमारी थी, बिना सर्टिफिकेट के पूजा कराओ, पढ़ाओ, कोई मना नहीं करता है। लेकिन कोई कुछ कर रहा है, आपको रोकते नहीं। इतना बड़ा समाज है, आप अपने समाज को खड़ा करो, ट्रेन करो, पढ़ाओ। मैं पंडित युधिष्ठिर मीमांसा का शिष्य हूँ, किसी कॉलेज में सर्टिफिकेट नहीं दिए थे, उनको यूनिवर्सिटी जो है उनके पास आया था उपाध्याय उपाधि देने। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छा काम अपनी परंपरा से करने से कोई रोक नहीं रहा है। पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी इंद्रपुरी वाले, और पंडित ओम प्रकाश शर्मा गीता पंडित मदन मोहन मिश्रा जी, पंडित अजय शुक्ला जी, पंडित भगवान सहाय कौशिक जी। ये करेंगे आप कर दो, जल्दी जल्दी करो। थोड़ा सामने से मैडम भाग्य, जस्ट कीप ब्रिंगिंग देम। मैम थोड़ा सा खत्म होगा ना? Anybody else? हो गया। ओके, ये सब आपका पैनल रचित जी, आपको उधर चला गया। Bless you, sir. Now it is, we are like a ball hit on the board. Now it is in your hand. रिले रेस होती है, रिले में अब जिम्मेवारी आपकी है।
कैमरे कैमरे सर नमस्कार। हाँ सर, अपने परिचय के साथ सर क्या मेरा कुछ नाम विज्ञानानंद है, यही परिचय। साधु का क्या परिचय चाहोगे? सर क्या नाम बताया था? विज्ञानानंद स्वामी। सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज विचार विमर्श किया गया और जैसे कि दुर्दशा को लेकर, पुजारियों की दुर्दशा को लेकर। ये पुजारी भी भारत के नागरिक हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। भारत सरकार का ये दायित्व बनता है कि उनकी जो आवश्यकता है, उनका नीड है, उनके सामने चैलेंज है, उसको लुक आफ्टर करें और उनको कल्याण के लिए बहुत सारे बोर्ड बनाते हैं। उनके लिए भी बोर्ड बनाए, कुछ फंड उनमें डालें जिससे कि इनका लुक आफ्टर किया जा सके। हमारी बहुत बड़ी परंपरा है। बहुत सारे लोगों की बाघ टाइगर की ये सब रिजर्व करने की करोड़ों रुपये खर्च करें ना भाई। बाघ टाइगर चीता, ये इतनी बड़ी परंपरा, उसके लिए कुछ खर्च हो जाए, उसके लिए कोई बोर्ड बनाना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, उसका दायित्व है। सर पर्टिकुलर सिर्फ दिल्ली सरकार को ही घेरा गया है, हमने देखा। सरकार को इसलिए बोला कि दिल्ली सरकार ज़्यादा हल्ला गुल्ला करती है कि वो मुल्ला मौलवी को पैसा दे रही है, तो दिल्ली की बात है। हम तो कहते हैं सबको करना, दिल्ली वालों को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। पर्टिकुलर क्या एक राशि रहनी चाहिए हमारे पुजारी? ये पर्टिकुलर जो भी बेसिक चीज़ है ना, एक सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ है, किसी भी परिवार को सर्वाइवल के लिए एक शहर में कहीं पर भी जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जी जी जी। हाँ। कैमरा देखिए, कैमरा देखिए बस जी। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जैसे कि विचार विमर्श किया गया, पुजारियों की जैसे कि दुर्दशा को लेकर बहुत अच्छी एक यहाँ पे गठित की गई, एक मीटिंग गठित की गई। क्या लगता है मैम, क्या धरातल पर भी क्या ये संभव हो पाएगा कि पुजारियों के लिए सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ कर पाएंगे? मैं राती हेगड़े हूँ, इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज़ मूवमेंट की एक मेंबर हूँ और मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए कि जितने भी सरकारें हैं, जो भी हैं, उनको कुछ ना कुछ सभी लोगों के लिए करना चाहिए ना। जाति के इसके ऊपर वो ऐसे बोल के ये उनको अलग से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो गरीब है, जिनको सच में प्रॉब्लम है और जो हमारे जो पुरानी सिविलाइजेशन है उसको आगे बढ़ाने में इतना काम कर रहे हैं, उनको सरकार मदद नहीं करेगी तो फिर और कौन करेगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको भी इसमें शामिल होकर उनकी मदद करनी चाहिए। उनके लिए जैसे वो इमाम लोगों को दे रहे हैं या फिर क्रिश्चियन पादरी को दे रहे हैं, हमारे जो हिंदू पुजारी है उनको भी देना चाहिए, कम से कम उतना तो दो। तो मैम सभी राज्यों में, क्या सिर्फ केवल दिल्ली के लिए ही ये सजेशन है कि सभी राज्यों में ही ऐसा होना चाहिए? ये सभी राज्यों के लिए ये सजेशन है। दिल्ली में हमने दिल्ली का फिल्म क्यों बनाया, क्योंकि वो भारत की राजधानी है और अगर राजधानी में ही ये तकलीफ़ है तो फिर आप सोचिए कि और राज्यों में कैसे होगा। इसीलिए हमने राजधानी के ऊपर ही ये फिल्म बनाया। लेकिन ये जो परेशानी है या ये जो कष्ट वो उठा रहे हैं, वो तो पूरे भारत में हो रहा है और सभी सरकारों को इस पर चर्चा विमर्श करना चाहिए और उनकी मदद के लिए भी उनको आगे आकर करना चाहिए कुछ उनके लिए। क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से तो वैसे ही वो निम्न है, ऊपर से उनके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं। तो जी, ये एक सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, अत्याचार तो अब सभी तो जानते ही हैं कि अत्याचार भी बढ़ रहे हैं और जो उनको हीन भावना से देखने का जो प्रक्रिया शुरू हुआ है वो भी चल रहा है, सभी जगह में चल रहा है और ये सब एक्चुअली क्रिएटेड है। जो हम बोलते हैं कि क्रिएटेड है, ये अपने आप से नहीं आता है, ये लोगों के दिमाग में डाला जाता है। तो ये सब रोकनी बहुत ज़रूरी है। कुछ पिक्चरों के माध्यम से और कुछ जैसे कि सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें भ्रामक, कुछ ऐसी चीज़ें चला दी जाती हैं जिससे पुजारियों के अस्तित्व पे सवाल उठ रहे हैं। जी जी जी, धन्यवाद। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं राती हेगड़े हूँ, इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज़ की एक मेंबर हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। मैम नमस्कार।
नमस्कार मैम, नमस्कार। जैसे कि दिल्ली में हिंदू पुजारियों के लिए जैसे कि यहाँ पे विचार विमर्श किया गया, दुर्दशा उनकी जैसे कि उनकी दुर्दशा को सुधारने के लिए विचार विमर्श किया गया, क्या कुछ आपका अपना विचार है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, नमस्कार। पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को बधाई दूंगी, दिल्ली स्टडी ग्रुप को बधाई दूंगी। महाराष्ट्र से जो राव जी ने जो ये प्रोग्राम किया है, नागेंद्र राव जी ने, और यहाँ पे डॉक्टर कपूर भी उपस्थित थे, JNU से एक्स प्रोफेसर थे वो, और काफ़ी दिग्गज थे यहाँ पर, और जिन्होंने प्रकाश डाला कि भारत में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है। मुझे अत्यंत दुखद के साथ ही मैं कहती हूँ कि येस ऑफ कोर्स हम लोग जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हम दान दक्षिणा करते हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं, किंतु परंतु जब ब्राह्मणों की बात आती है तब हम उन्हें पूजा के समय में कुछ चंद रुपयों से संतुष्ट करने की आशा रखते हैं, और उसमें भी हम आलू सब्जी की तरह उनसे भाव करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को, जब कोविड का समय था, आप समझिए सबके पास कुछ ना कुछ बैकअप होगा, कुछ ना कुछ खाने का रहा होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम रहा होगा, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज रहे होंगे, लेकिन ब्राह्मणों के लिए तो रिसोर्सेज ही मुझे लगता है कि मंदिर थे जो कि उस समय बंद थे। आप ही सोचिए, जो भी दान आता था या कोई यजमान अपना करवाते थे, नामकरण, गृह प्रवेश या शादी विवाह, वे सब बंद थे। उनसे आने वाली आय भी उस समय उनको नहीं मिल रही थी। आप सोचिए वो कितनी दयनीय स्थिति में जी रहे थे। तो मेरी ना मैं पक्ष में हूँ ना मैं विपक्ष में हूँ। मैं सभी से मेरा यही निवेदन है कि जब तक हम श्रद्धा नहीं रखेंगे अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो उनसे जुड़े हुए हैं, जब हम उसका सम्मान करेंगे तो वो स्वतः ही वो एक जिम्मेदारी के प्रति जाएगा, और जिम्मेदारी में क्या होगा, उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और ये केवल एक व्यक्ति विशेष से नहीं होगा, इसमें संगठनात्मक तरीके से आकर के हमें विचार करना होगा, और अपनी सरकारों से, अपनी NGO से, अपने इंडस्ट्रीज़ के लोगों से इस पर विचार विमर्श करना होगा कि कुछ ना कुछ जैसे भी हो मंदिर के पुजारियों और ब्राह्मणों के लिए कोई फिक्स इनकम हो, क्योंकि देखिए उनका भी परिवार है और अंत में उनको भी कुछ ना कुछ इनकम की ज़रूरत है। और जो डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई है वो एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि जिससे कि लोगों तक ये संदेश जा सके कि ब्राह्मणों की स्थिति क्या है और उनके लिए मूलभूत रूप से धरातल पे क्या हो सकता है। इसके लिए संगठनात्मक तरीके से एक मेरे को लगता है कि बिल ही पास करा लेना चाहिए कि जब हम रामलीला मैदान में विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेके जा सकते हैं, हम ऐसे मुद्दों को लेके जा सकते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन ये मुद्दा तो हमारे धर्म से जुड़ा है, सनातन धर्म से जुड़ा। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो ये ऐसे नहीं कहा गया, ये इसे कहा गया है कि जब तक कोई ब्राह्मण का पेट भरा नहीं होएगा तो वो कैसे आगे अपने वेदों को, अपनी बातों को, अपने संस्कारों को, इन पे प्रकाश डालेगा। ये प्रश्न मेरा एक हर व्यक्ति से है, उस व्यक्ति से है जो पैसा बाहर डोनेट करते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियों में डोनेट करते हैं। मैं किसी के विपक्ष में नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ यथार्थ में जिस चीज़ की आवश्यकता, जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता, जो संस्कारों की आवश्यकता हमारे भारत में है और भारत के बच्चों को है, उसके लिए अगर वो डोनेशन यहाँ मिले उन लोगों को, चाहे फिक्स इनकम के रूप में मिले, सैलरी के रूप में मिले, और आप कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि आप लोग वेदों का पाठ करेंगे, आप इसको खोएंगे नहीं, आपको डिग्रीज मिलेंगी, सर्टिफिकेशंस मिलेगा, रिकॉग्निशंस मिलेगा समाज में, तो क्यों नहीं इसके प्रति जागरूकता फैलेगी और ब्राह्मणों की स्थिति, पंडितों की स्थिति दयनीय से ना होकर के एक अच्छे स्तर पर पहुंचेगी और उनको भी सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरी प्रार्थना है सभी से, और बहुत बहुत धन्यवाद कि ब्राह्मणों के इन तबकों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए और इस वर्ग के लिए कुछ ना कुछ एक धरातल पर इसको मौखिक रूप से ना रख करके एक धरातल पर पे इसको उतारा जाए और कोई ना कोई इसके सोल्यूशन की तरफ में कोई सुझाव के प्रति, इसके प्रति कंक्रीट तरीके से इसको समाप्त किया जाए। धन्यवाद। मैं टीना पुरी जिंदल, जर्नलिस्ट एंड सोशलिस्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। I think you are with Ritu ji and Rati ji. Okay. So then we will get it because Kadejwali is there. Thank you so much. Thank you. हाँ जी, जय श्री कृष्णा। सर अपने परिचय के साथ।
हाँ सर, क्या कुछ कहेंगे जैसे कि दिल्ली में हिंदुओं की खासकर हिंदू पुजारियों की दुर्दशा को लेकर यहाँ पे विचार विमर्श किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। सर, क्या लगता है कि सभी हमारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, सभी आए हैं, क्या लगता है कि इस प्रकार के विचार विमर्श से, और एक क्लिप भी दिखाई गई है यहाँ पे और बहुत ही जैसे कि इमोशनल क्लिप थी जिसमें सभी अपनी स्थिति के बारे में बता रहे थे, पुजारी संघ सभी अपनी स्थिति के बारे में बता रहे थे, तो क्या लगता है सर इससे कुछ समाधान निकल पाएगा? हाँ, बिल्कुल समाधान निकल पाएगा। और ख़ास तौर पर जो आज की यहाँ पर जो एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म दिखाई गई है कि दिल्ली में ब्राह्मणों की दुर्दशा, ये केवल दिल्ली की नहीं, पूरी ऑल ओवर भारत के ब्राह्मणों की जो दुर्दशा है उसके ऊपर वर्णन किया गया है कि जो समाज का मूल हैं, जो समाज को संजोए रखे बैठे हैं। आज जैसे एक बहुत बड़ी बात हुई कि जितनी भी हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हस्तलिखित ग्रंथ हैं, वेदों को संभालने वाले ये लोग, और फिर जो जिनका जीवन यापन इतना कठिनता से चल रहा है, तो भारत सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि ब्राह्मणों के प्रति हमारे समाज में जो है वो सम्मान होना चाहिए, और साथ में ब्राह्मणों को भी एक होकर चलना चाहिए। और सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युगों में हमारे कारण ही धर्म चला है, और आज भी जो है कितने वर्ष हो चुके हैं, तो हर काल में, मुग़ल काल में, ब्रिटिश काल में, आज के युग में भी ब्राह्मण ही है जो इस पूरे समाज को जो है रास्ता देता है और मार्ग देता है। हमारे जो 16 संस्कार हैं उनके साथ इनका जुड़ाव है, और आज राष्ट्रीय भाषा संस्कृत जो है इसी की रक्षा इसी ने की है। तो मैं मानता हूँ कि जो विश्व गुरु हैं वो ब्राह्मण है, और साथ में हमारे हिंदू धर्म में हमारे भारतीय समाज को अपने शिक्षकों की, हमारे धर्म रक्षकों की, जो हमारे कल्चर की रक्षा करते आ रहे हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। और हम सबको भी और अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि हम इसको थोड़ा मॉडर्नाइज़ करें। हमारे सनातन धर्म का वैसे तो और यूट्यूब के ऊपर बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, और थोड़ा सा बढ़िया बना करके लोगों के बीच जा कर के जो कम्युनिकेशन गैप है जो वो ठीक होना चाहिए। लोगों को वास्तविकता का पता चलना चाहिए कि जो प्रीस्ट लोग हैं उनकी कितनी दुर्दशा है, ठीक है, उनके प्रति हमारा ये धर्म बनता है। जय श्री कृष्ण। सर, जैसे कि खासकर जैसे हमने देखा स्टोरी में दिल्ली सरकार के ऊपर भी तंज किया गया, उनके ऊपर ये बताया गया कि जैसे कि उन्होंने दिल्ली के जो मौलवीज़ हैं उनके लिए 15 से 16 हज़ार रुपये तय किए गए हैं, वहीं दिल्ली के पुजारी के लिए कुछ भी ऐसा कोई योजना नहीं बनाई गई। तो सर, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए मैं ये की बात कहूँगा कि ये सिर्फ हमारी कमज़ोरी है। आप ना संगम टॉक्स एक यूट्यूब के ऊपर लॉन्च करिए, संगम टॉक, SANGAMTALKS। आज का जो प्रोग्राम है सारा उसमें दिया हुआ है। तो इसके लिए कहते हैं ना कि अगर हम जो शांत हैं, जो संतोषी हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। वास्तव में हमारा अधिकार है। अभी बात हुई है कि हम सभी ब्राह्मणों को रामलीला मैदान में जाना चाहिए और अपने अधिकार की मांग करनी चाहिए। और जो केजरीवाल जी हैं वो एक तरफ़ा ही फैसला ना करें, क्योंकि उनको वोट हिंदुओं ने भी दिया है, सभी ने दिया है, और वो खुद भी हिंदू हैं। तो इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसा पक्षपात करने से उनके जो इमेज है वो अच्छी नहीं रहेगी। और अगर वो चाहते हैं कि अपनी इमेज अच्छी बनाएं तो सर्वधर्म, ये नहीं, मैं कहता हूं कि जैन साधुओं के लिए, सिख ग्रंथियों के लिए और हिंदू प्रीस्ट के लिए, सभी के लिए वो पूर्ण ध्यान दें। धन्यवाद सर। पुनः अपना परिचय दे दीजिए सर। पुनः अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम है आचार्य राम शास्त्री। जैसा कि आपने देखा, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मूवमेंट फॉर इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज़ के लिए एक मुहिम छेड़ी गई। आपको बता दें, सभी बुद्धिजीवी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति, अतिथिगण इस कार्यक्रम में, सभी बुद्धिजीवी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखे। उन्होंने अपने विचार रखे। क्या कुछ हिंदू पुजारियों के उत्थान के लिए आह्वान किया जाना चाहिए। हिंदू पुजारियों के उत्थान के लिए उनके जैसे कि दुर्दशा है, खासकर दिल्ली में उनकी एक मार्मिक दुर्दशा को, खासकर दिल्ली जैसे राज्य में पुजारियों की मार्मिक दुर्दशा को दिखाया गया। एक फिल्म के जरिए दिखाया गया, एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाया गया, जहां उन्होंने अपनी व्यथा को सामने रखा। आपको बता दें, डॉक्यूमेंट्री में सभी पुजारियों ने अपनी व्यथा बताई, अपनी स्थिति बताई, अपनी आर्थिक स्थिति से वे कैसे वे दैनिक आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, इसके बारे में सभी हिंदू पुजारियों ने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बताया, अपनी मार्मिक स्थिति के बारे में बताया, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया।
कि कितनी निम्न परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है, कि बड़े आयोजनों में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ एक अच्छा आचरण नहीं दिखाया जाता, उनके साथ उनको दक्षिणा देने के नाम पर उनको कहा जाता है कि पंडित जी आप तो लूट रहे हैं, ऐसे शब्दों का संबोधन किया जाता है। तो आपको बता दें, इस प्रकार के शब्दों के संबोधन से पुजारी बहुत आहत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने आपके घर के उत्थान के लिए हमने इतने पूजा पाठ किए, हमने जी द्वारा इतने पूजा पाठ किए जाते हैं और पूजा अर्चना की जाती है, मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, तो क्यों नहीं हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम उनके द्वारा पूजा अर्चना करवाने के बाद उनके साथ किसी प्रकार का मोल भाव ना करें, उनको अपने श्रद्धा से बढ़कर हम आपको बता दें अपनी श्रद्धा से बढ़कर हमें पुजारियों को दक्षिणा देनी चाहिए। ये सभी बातें इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई और बताई गई कि सभी देशवासियों को, सनातनियों को, खासकर हिंदुओं को हमारे हिंदू पुजारियों का सम्मान करना होगा। अगर उनका सम्मान नहीं किया गया, अगर उनको आर्थिक दृष्टि से ऐसे ही क्षीण छोड़ दिया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब हमें पुजारी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे पूजा अनुष्ठानों के लिए। तो कृपया करके आप भी हमारे, और आपको बता दें, आपको विशेषकर इस बात की जानकारी दे दें कि यह जो मूवमेंट चलाया गया है इक्वल राइट्स फॉर हिंदू, ये एम नागेश्वर राव जी जो कि पूर्व में IPS, बता दें पूर्व में रिटायर्ड अफसर रह चुके हैं, CBI के फॉरवर्ड डायरेक्टर रह चुके हैं एम नागेश्वर राव जी। उनके तत्वाधान में, उनके सौजन्य से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन भी एम नागेश्वर राव जो कि IPS और फॉर्मर डायरेक्टर हैं CBI के, उनके सौजन्य से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी बुद्धिजीवियों ने और सभी बड़े पुजारियों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।